Hello students, welcome to our YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. Here is your maths teacher Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn an interesting topic in your maths. But before that, let's have some discussion. So here is a dialogue where Vidula is asking to his sir about this topic. Sir, my brother said he was studying algebra. So what is algebra? Now we all know that we are learning maths, okay? But in like somewhere we have heard algebra, geometry, trigonometry. So if maths is a maths, then what is algebra, what is geometry, and what is trigonometry? So sir said, yes, algebra is also a kind of maths where, to put it simply, algebra consists of the use of numbers and letters to state and solve problems. And what does it means? इसका मतलब क्या है? सर ने क्या कहा कि अलजेब्रा भी एक तरीके का मैथ्स है जहाँ पर हम कैलकुलेशंस जो है वो ऑपरेशंस जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, बट अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स, ओके, letters and numbers. For example, if I say 2x plus y, so here what I am doing, I am taking the help of the letters. So when there is a letter with the numbers, it is called as an algebra. Understood, student? So what we are going today to learn? Today we are going to learn about preparation for algebra. अब हम क्या करेंगे? हम algebra की तरफ बढ़ेंगे, algebra की तैयारी जो है हम करेंगे. So when sir has explained to Vidula, then Ravi said, does that mean addition and subtractions of letters? So Ravi was again confused. He said कि सर इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी, तो हम लेटर्स को लेटर्स से माइनस करेंगे. हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी कैन माइनस 6 माइनस 4, राइट? या हम 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा. बट हाउ कैन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द लेटर्स? वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट ना सर. a माइनस बी क्या, व्हाट विल बी द आंसर? सो सर सेड टू प्रिपेयर फॉर दैट लेट्स फर्स्ट लर्न अ फ्यू थिंग्स यूजिंग numbers. So sir said ki we can, but before that we have to learn how to do this. Okay, so हमें पहले numbers के साथ वो देखना है operations, and then we will learn about the letters subtraction and other operations. Okay, so here the first term in your this preparation for algebra is equality. अब equality क्या है? Equality means equal करना. फॉर एग्जाम्पल टेक अ नंबर 10. ओके, अब 10 जो है 10 आने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, राइट? अब क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होंगे? यू से सी इफ आई वांट माय आंसर एज 10, सो इट कैन बी 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 15 माइनस 5 इज ऑल्सो 10. एंड सोचो yes, 50 divided by 5 will also give you 10. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी यूज़ किया है, एडिशन फॉर्म भी यूज़ किया है, सब्सट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन, एंड कोई भी ऑपरेशन लूँगी मैं, मेरा जो फाइनल आंसर है विल बी 10. सो दिस इज द what this is? This is a simple operation. This we can do. ये हमारा जो है इक्वलिटी का एक फॉर्म है. So what it is written? Whenever we add, subtract, multiply or divide two numbers, the answer we get is always another number. For example, when we add 5 and 3, we get the number 8. Write this as 5 plus 3 is equal to 8. Similarly, if we want 13, सो 6 इज इक्वल टू 7 हो सकता है, क्योंकि 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 होगा. 12 डिवाइड बाई 4 विल बी 3, 9 इंटू 1 विल बी 9. नाउ लेट अस थिंक अबाउट इन दिस अनदर वे. ओके, सो व्हाट इज़ द अनदर वे? अनदर वे वही है जहाँ पे दे कुड बी 6 प्लस 6 12, 15 माइनस 3 12, 6 इंटू 2 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 24 डिवाइडेड बाई 2.
So all these four operations will give you the same answer as 12. Okay. When we want to say a number obtained by adding 6 and 6, so यहाँ पे देखो, when we say a number, if you don't know the number, we what say कि add 6 and 6. So 6 and 6 will be 6 and 6 add. So what will be the answer? 12. Okay. So यहाँ पे हमको 12 जो है मिल गया, मीन्स अब ये 12 जो है हम कोई भी तरीके से ला सकते हैं. यहाँ पे अगर हमको सिर्फ बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ नंबर वेर यू कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, बट द फाइनल आंसर विल बी 12. तो यहाँ पे उसके अलग अलग ऑप्शन है. 15 - 3 मीन्स अ नंबर ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 15. 6 into 12 means a number obtained by multiplying 6 by 2. 24 means a number obtained by dividing 24 by 2. Now these arrangements like 6 plus 2, 15 minus 3, 6 into 2, 24 divided by 2 are called as an expression. Okay, understood? And we can, अभी ये तो हमारा हो गया है एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रा कैसे बनेगा? सो अगर मैंने ऐसे लिखा है 5 into 2 is equal to 5 plus 5. Will this expression is correct? ये क्या सही है? Now in algebra, see, in algebra there are two sides, that is your left hand side and right hand side. हमें ये दोनों को इक्वल करना है टू फॉर्म दैट इक्वलिटी, बिकॉज हमारे अलजेब्रा में द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू चेक इज द इक्वलिटी. सो कैन आई राइट 5 into 2 इज इक्वल टू 5 plus 2? Yes. Why? Because 5 multiplied 2 is equal to 10 and 5 plus 5 is equal to 10. Alright? Understood? Now if I say 6 plus 9, what will be 6 plus 9? And if I say 20 minus 5. Now let's check whether these are equal or not equal. So 6 plus 9 is 15 and 20 minus 5 is 15. So my expression is equality in form, equality form, right? Because मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो इक्वल है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आवर टीचर वांट टू से इज कि ये जो अलजेब्रा है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स जस्ट अ मैजिक ऑफ रिप्लेसिंग द लेटर्स विद द नंबर्स एंड प्लेइंग विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो नाउ व्हाट वी विल डू अ प्रैक्टिस सेट 54. सो इट्स वेरी इजी. अब समझ में आया कैसे करना है? तो हम पहले सिंपल में जाएंगे. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. यूजिंग ब्रैकेट्स, ओके, राइट 3 pairs ऑफ नंबर्स हुज सम इज 13. अभी यहाँ पे सम मीन्स यू कैन से एडिशन. हमें ऐसे 3 pairs बनाने हैं जिसके नंबर्स को ऐड करके 13 आता है. सो व्हाट विल बी, पहला बताओ कैसे होगा? Yes, the first one is our 8 plus 8. 8 plus 8 is 16. Second one is 10 plus 6 is equal to 16. Third one is, what will be third one, student? 12 plus 4 is equal to 16. और यू कैन से अगर और लिखना है तो 20 minus 4 is equal to 16. बट यहाँ पे माइनस हम नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज इन माई क्वेश्चन इट इज़ रिटेन यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 pairs ऑफ नंबर्स हुज सम इज 13. सम मीन्स प्लस होता है, डिफरेंस मीन्स माइनस. ओके, अंडरस्टूड? सो इन दिस वे you will do the second sum also, that is find 4 pairs of numbers, one for each of addition, subtraction, multiplication and division that make the number 18. अभी ये आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया है. एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों फॉर्म में आपको एक पैर वाला एक्सप्रेशन जो है यू हैव टू
form where the final answer will be 18. In this question my final answer is 10. You have to make in the same way where your final answer will be 18. Understood, student? Now we will proceed to the next topic of the same chapter, that is preparation for algebra is a chapter, and the topic is इनइक्वलिटी. हमने इक्वलिटी पढ़ लिया ना. इक्वलिटी कैसे करते हैं, जहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो नंबर्स है वो इक्वल रहता है, 10 and 10. ओके, नाउ वी विल डू द इनइक्वलिटी फॉर्म वेयर सी द वैल्यूज ऑफ 7 + 5 इज 7 + 5 इज 12, बट एंड 7 × 5, अगर मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आई विल गेट द आंसर 35. सो मेरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है नहीं, ये इक्वल नहीं है. वाई? बिकॉज हियर आई एम द नंबर इज सेम इन बोथ द एक्सप्रेशन. दोनों जगह पर, दोनों सिचुएशन पे नंबर सेम है, बट साइन चेंज करने की वजह से, द ऑपरेशन चेंज करने की वजह से मेरा जो फाइनल आंसर है वो डिफरेंट है, वो अलग है. सो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, एंड टू रिप्रेजेंट नॉट इक्वल द सिंबल इज दिस. सो अगर मेरा इक्वल नहीं है तो मैं इस तरीके से सिंबल यूज़ करूँगी. ओके, दिस सिंबल एंड दिस एक्सप्रेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज इनइक्वलिटी. ओके, अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9 - 5. सो 9 - 5 इज व्हाट? 4, एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 5. अब ये इक्वल है या अनइक्वल है? यस, एग्जैक्टली इट इज़ अनइक्वल, बिकॉज मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल नहीं है. सो विच इज़ ग्रेटर? माई 5 नंबर इज ग्रेटर. सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस अनइक्वल साइन आई विल डू द ए ग्रेटर नंबर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सिंबल डालेंगे ग्रेटर का. ओके, so if two expressions are not equal, one of them is greater or smaller than the other, to show greater or lesser values we use the symbol greater and smaller. Therefore these symbols can also be used to show inequalities. Understood? जब हमारा नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ग्रेटर साइन या लेसर साइन का यूज़ करेंगे. नाउ let's do this exercise. Example of the textbook. Fill in the boxes between the expression with greater, equal to or lesser as required. So my first expression is 9 + 8. अब यहाँ पे बॉक्स दिया है जहाँ पे हमको एक्सप्रेशन का जो सिंबल है वो डालना है कि वो ग्रेटर है कि स्मॉलर है या इक्वल टू है. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 9 + 8 एंड सेकेंड वन इज 30 डिवाइडेड बाय 2. So 9 + 8 is 17 and 30 divided by 2 is 15. So 15 and 17. So मेरा कौन सा नंबर ग्रेटर है? 17 is greater. It means ये जो नंबर है ये ग्रेटर है, ये बिगर है, राइट? सो यहाँ पे मैं सिंपली ये वाली साइन पुट करूँगी. अंडरस्टूड? Therefore 9 + 8 is greater than 30 divided by 2. Okay? Second one, 16 multiplied by 3. So 16 multiplied by 3 is 48 and 4 multiplied by 12. 12 4 is also 48. So my right hand side is also 48 and my left hand side is also 48 and my right hand side is also 48. It means it is equal. ये क्या है? ये इक्वल है. सो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है. नाउ स्टूडेंट अगेन आई एम सेइंग, इफ़ मेरा दोनों एक्सप्रेशन अनइक्वल रहेगा तब मेरा ये ग्रेटर और स्मॉलर का साइन यूज़ होगा. अगर मेरा एक्सप्रेशन इक्वल है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो मैं इक्वल की साइन यहाँ पे पुट करूँगी. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम. 16 - 5. सो फर्स्ट वी विल डू द कैलकुलेशन ओनली. 16 में से 5 अगर हम निकालेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 11 एंड 2 7 is 14. सो which one is greater, this one or this one? Exactly, 2 × 7 is 14, so 14 is greater. So you will put that crocodile's mouth in this direction. Okay, understood? So in this way you will do this problem set 55. Okay, and in your workbook also. Now as we have learned about equality and inequality,
Now we will do the exercise with using these letters. So this is the proper algebra which you are going to learn. So let's see how we will use these letters in our mathematical term. Symbols are frequently used in mathematical writing. The use of symbols makes the writing very short. For example, using symbols. अभी अगर यहाँ पे क्या कहा गया है कि सिम्बल्स जो है वो हमारे वर्क को बहुत ही ईजी करते हैं. अगर हमें डिवीजन के लिए डिवीजन करना है, so instead of writing this division of 75 by 15 gives us 5, क्या इट इज़ रिटन इन शॉर्ट ना. अभी इतना बड़ा सेंटेंस को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? 75 इज डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5. इट मीन्स डिवीजन ऑफ 75. किसका डिवीजन करना है? 75 का. बाय किससे करना है? 15 से. सो डिवाइडेड बाय 15 गिव्स अस, ये गिव्स अस मीन्स इक्वल टू, सो इक्वल टू 5. सो इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू ग्रास्प. वो बहुत ही ईजी हो जाता है हमें समझने में. लेटर्स कैन बी यूज लाइक सिम्बल्स टू मेक आवर राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल. हमारे जो लेटर्स भी है ना वो हमें बहुत ही ईजिली वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं सेंटेंस को शॉर्ट में लिखने के लिए. While adding, subtracting or carrying out other operations on numbers, you must have discovered many properties. For example, what properties do you see in sums like 9 plus 4, 4 plus 9? यहाँ पे आपने क्या देखा है? 9 plus 4 और 4 plus 9 में आंसर दोनों के इक्वल हैं, बस क्या किया गया है? नंबर्स को ट्विस्ट कर दिया गया है. So it means the sum of any two numbers and the sum obtained by reversing the number. मतलब the sum of any two number means यहाँ पे 9 plus 4 है, and the sum means plus, reversing the number means जो 9 plus 4 है उसे 4 plus 9 किया है, of the two numbers is the same. So रिवर्स करने पर भी आपका जो नंबर्स है वो क्या है? सेम ही है. Now see how much easier and faster it is to write this property using letters. अब इतना बड़ा सेंटेंस जो था, the sum of any two numbers and the numbers obtained by reversing the order of the number is the same, and इसको इतने शॉर्ट में लिख दिया गया है 9 plus 4, 4 plus 9. Okay, so let us use A and B to represent any two numbers. So अभी यहाँ पे अगर मैं यही सेंटेंस को मुझे अभी नंबर्स में लिखना है, हमारे सिंबल में लिखना है, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स. सो अगर मुझे ये नंबर्स पता नहीं है, इफ़ आई डोंट नो द नंबर्स एंड आई हैव अ सेंटेंस, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स. ओके, सो द सम मीन्स प्लस एनी टू नंबर्स. इफ़ आई डोंट नो द नंबर्स आई विल सिंपली पुट एक्स एंड वाई. ओके, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स मतलब x प्लस वाई and means equal to the sum obtained by reversing the order. obtain क्या मतलब यहाँ पे क्या है? फिर से एक सम है और यहाँ पर जो obtain हुआ है आंसर वो भी वैसा ही है by reversing the order. it means it will be y plus x. हो सकता है? yes. so this is my proper you can say expression in your algebraic फॉर्म. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द सेंटेंस एंड आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ द लेटर्स एंड फॉर्मिंग द इक्वेशन. सो दिस इज योर अलजेब्रा. ओके, सो हियर सी इट इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी. क्योंकि जब हमें कोई भी नंबर्स पता नहीं होता है, whenever we don't know the numbers in algebra, we consider them as x or a, any letter which you feel like comfortable. कोई भी लेटर का यूज़ करके हम वो नंबर्स को कर सकते हैं. Now let us see two more examples. Multiplying any number by 1. Okay, so what it is said, multiplying any number. अभी मुझे वो नंबर पता नहीं है, so I am saying a and multiplying any number by a, so by a, so by 1 sorry. तो यहाँ पे 1 gives the number itself. अब यहाँ पे gives the number itself. अब मैंने जो नंबर लिया है एनी नंबर वो मैंने a लिया है, तो जो नंबर मुझे मिला है वो भी सेम रहेगा. सो इट विल ऑल्सो बी a. अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 9 and I don't know the numbers, so I have taken the help of this letter. So your a multiplied by a1 is equal to a. Okay, understood?
So now we will do this problem set 56. First I will read the sentence and then we will form the representation or the expression of the sentence. Half of a number is x. So now here half of a number. Do we know the number? Number क्या है हमें पता है? नहीं पता है. इस हमारा जो प्रोडक्ट है इक्वल टू का साइन है. हाँ, सो हमें ये पता है कि ये इक्वल टू 150 है. ओके, एंड हाफ ऑफ अ नंबर आई नो. सो हियर हाफ मीन्स दिस. डू वी नो द नंबर? नो, वी डोंट नो द नंबर. सो व्हाट वी विल डू? वी विल सिंपली पुट एक्स. तो मेरा ये इक्वेशन फॉर्म हो गया. सो इन दिस वे यू विल डू. हाफ ऑफ अ नंबर इज 150. सो हाफ मैंने लिख दिया है. आई डोंट नो द नंबर, सो आई हैव पुट योर एक्स एंड इज इक्वल टू 50. नाउ सेकेंड वन, 5 टाइम्स अ सर्टन नंबर. ओके, 5 टाइम्स अ सर्टन नंबर इज ग्रेटर देन 60. सो सी, 5 टाइम्स मीन्स 5x. वाई? बिकॉज 5 टाइम्स है और नंबर मुझे पता नहीं है, तो आई हैव पुट योर x एंड इज ग्रेटर. ये जो नंबर है 5 टाइम्स अ नंबर, ये जो है ये ग्रेटर है, मीन्स बड़ा है. सो ग्रेटर देन 60. सो इन दिस वे माई सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व. ओके, एंड दिस इज सेम विच आई हैव taught you, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर. प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर. सो यहाँ पे देखो मेरे अर्लियर वाले में था द सम ऑफ टू नंबर था, राइट. बट यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है. सो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर. सो इफ आई से a मल्टीप्लाई बाय b and the product obtained by reversing the order is same, means b multiplied by a. Okay, understood? So don't forget that sum is equal to plus, difference is equal to minus, product is equal to multiplication. Okay, and division, it's very simple. You can like it is stated, sometime वो बता दिया जाता है और नहीं तो like divide या word use होगा. Okay, so in this way you will simply form your equation and you will do the preparation. ये एक simple सा basic concept है for algebra. In your next standard you will learn into more details about this algebra. Till then do practice these sums, do practice how to form equation with the help of the sentence. So have a good day students. Bye bye, take care, stay safe, stay home. Okay, bye bye.